کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث آج ہوگی۔ پاکستان ایل او سی پر بھارتی جارحیت سے بھی اقوام عالم کو آگاہ کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو این سیکریٹری جنرل سے ملاقات بھی شیڈیول۔ ملک میں برف باری سے اموات کی تعداد 100 ہو گئی۔ سرگن ویلی میں برف تلے دبی مزید 11 لاشیں نکال لی گئیں۔ آزاد کشمیر میں جاں بحق افراد کی تعداد 76 ہو گئی۔ بلوچستان میں 20، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین میں سامان تقسیم۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ آزاد کشمیر، سی ایم ایچ مظفر آباد میں زخمیوں کی عیادت۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں کی بحالی سے متعلق بات چیت۔ گیس اور بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ میں اختلافات۔ صوبائی کابینہ نے آئی جی کلیم امام کو ہٹانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ جس افسر کو سیاست کا شوق ہے وہ پولیس چھوڑ کر بے شک سیاست کرے۔ نئے آئی جی کے لیے غلام قادر ٹھیبو، مشتاق مہر، کامران فضل اور ثناء اللہ عباسی کے ناموں پر غور۔ آئی جی سندھ کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی میدان میں آ گئی۔ کلیم امام کی تبدیلی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ آئین کے تحت صوبائی حکومت کو نام تجویز کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا گورنر سندھ کو فون، معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہدایت۔ آئی جی کلیم امام نے متعدد با اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، بغیر ثبوت حکومت پر الزامات لگائے، افسران کی تقرری میں مداخلت کی۔ سعید خلیل نے کلیم امام کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ آئی جی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا مطالبہ۔ الزام نامعلوم افراد کے اینکر مرید عباس کی بیوہ زارا عباس کے گھر کے چکر۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس موٹر سائیکل سواروں نے خود کو رینجرز کا اہلکار ظاہر کیا۔ بلڈنگ کے چوکیدار سے معلومات لینے کی کوشش کی۔ زارا عباس کا متعلقہ تھانے سے رابطہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی اتحادیوں کو منانے کا مشن۔ حکومتی کمیٹی کی قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ دونوں جماعتوں کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ تحریر شدہ معاہدوں کی پاسداری کا بھی وعدہ۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ایم کیو ایم کے مطالبات بھی پورے ہوں گے۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی جانب سے نجی ٹی وی کے پروگرام میں فوجی بوٹ لانے کا معاملہ۔ وزیر دفاع پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور دیگر پارٹی رہنماؤں کا شدید تحفظات کا اظہار۔ نون لیگ کی جانب سے فیصل واؤڈا کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد۔ واقعہ شرمناک اور قومی ادارے کی تصحیح قرار۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر علی زیدی کے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں پر طعنے تشنے۔ حکومتی ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹس پر علی زیدی نے جواب دیا کہ کل یہ لوگ میرے پاس ٹکٹ لینے کے لیے آئے تھے۔ علی زیدی کے جواب پر پی ٹی آئی کراچی کے ارکان سراپا احتجاج۔ پی ٹی آئی کے ایک اور رکن اسمبلی سردار ریاض کا راجن پور میں اپنی ہی حکومت پر نوکریاں بیچنے کا الزام۔ نواز شریف کو فوری انجیوگرافی کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم کی نئی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ کارڈیک کنسلٹنٹ سرجن ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف ہائپر ٹینشن، شوگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں۔ نواز شریف کا برطانیہ میں علاج جاری رکھنے کی اجازت طلب۔
नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब को भी मौसूल। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक नून लीग गलत बयानी कर रही है। 25 दिसंबर की रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। नई रिपोर्ट्स में कुछ साबित हुआ तो मजीद रिलीफ देंगे। हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। बराहे मेहरबानी नवाज शरीफ जल्द से जल्द इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आ जाएं। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको खबर देंगे आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। वादी नीलम में सरगन के लवात और चकनार समेत दीगर इलाकों में 76 अफराद जाँ बहक जबकि 53 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए लेकिन खराब मौसम की वजह से मुतासरा इलाकों तक ना पहुंच सके। खराब मौसम के बायस मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और हुकूमत ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कहना है कि हम हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ मिलकर चलेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि MQM समेत तमाम इत्तेहादी साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। देखिए हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन की सरबराही में हुकूमती कमेटी की मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना है जिन्हें दूर करेंगे। पहले भी हम इत्तेहादी थे, अब भी इत्तेहादी हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह हमें इस हुकूमत को 5 साल इंशाल्लाह हम इकट्ठा पूरा करेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि MQM समेत तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत हुई है। हमारे जो मुत्तहिदा के लोग हैं वो मिनिस्ट्री से अलग हुए हैं मगर वो हुकूमत से अलग नहीं हुए। अपने बयान में उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है और मुझे उम्मीद है कि हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो वापस काबीना में जरूर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। इस मौका पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना था कि हुकूमत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, हम हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। जो गलत फहमियाँ थी वो न सिर्फ दूर हुई बल्कि जो हमारे मुतालबात थे वो इन्होंने तस्लीम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा। और उसके बाद जिस तरह खटक साहब ने कहा है हम इत्तेहादी थे, इसमें कोई शक नहीं और हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत का साथ देंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए मुतालबात पर अमल दरामद भी कराएगी। कैमरामैन काविश मेहदी के साथ हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक महकमा दाखिला पंजाब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के दुरुस्त होने या ना होने का हतमी फैसला महकमा सेहत पंजाब का मेडिकल बोर्ड करेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करा दी गई हैं। फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत में तौसी का मामला लटक गया। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी देने की मुखालफत करते हुए रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को उस वक्त तक दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता जब तक मुतालिका बोर्ड उसको दुरुस्त करार नहीं देता। इस ज़िम्न में नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को भिजवा दी गई है, जबकि महकमा सेहत पंजाब मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेकर तजावीज पेश करेगा, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। जबकि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन और नोटरी पब्लिक फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस UK से तस्दीक शुदा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ के सेहतमंद होने तक बरतानिया में रहने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, शुगर और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। उनके प्लेटलेट्स को बरकरार रखने के लिए माहिरीन इक़दामात कर रहे हैं। जबकि रिपोर्ट में नवाज शरीफ की फौरी एंजियोग्राफी की तजवीज भी दी गई है। फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत और अदालत ने नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी पर सहूलत दी। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आएं और अदालतों का सामना करें। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर अली खान।
निश्तर अस्पताल मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा गया था। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आए। डॉक्टर अदनान से राब्ता हुआ है। इनका कहना है कि जल्द नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स भिजवा देंगे। नवाज शरीफ के वकील ने वापसी की मुद्दत में तोसी के लिए जो रिपोर्ट्स जमा करवाई उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि तोसी दी जाए। हमारा तो इसरार सिर्फ ये है कि आप मेहरबानी करके इलाज करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके और वापस तशरीफ लेके आए, और जिस तरह हम आपको असिस्ट करा सकते हैं हम करेंगे, पर रिपोर्टें भेजेंगे तो हम आगे कोई बात कर सकते हैं। सेहत के महकमे में 26,000 मुलाजमतें दी गईं, 10,000 नई मुलाजमतें आने वाली हैं और इस साल के आखिर तक 35,000 नई मुलाजमतें सेहत के शुबे में दी जाएंगी। अभी 10,000 नई मुलाजमतें जो हैं वो पाइपलाइन में, जिसमें इनकी सिलेक्शन हो गई है। जिस दिन इनकी प्लेसमेंट हो जाएगी वो 26,000 की गिनती बढ़ती चली जाएगी और हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह 35,000 नई मुलाजमतें। इनका मजीद कहना था कि जिन 9 अस्पतालों की हम बात करते थे उनमें से 3 पर काम शुरू हो चुका है और 3 का PC1 बन चुका है। महकमा सेहत की डेवलपमेंट के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। कौमी असम्बली का इजलास ब्यूरोक्रेसी के लिए सख्त तनबीह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। स्पीकर ने कहा कि आइंदा दौरान इजलास मुताल्लिका वजारतों के अफसरान मौजूद न हुए तो रूलिंग ACR के साथ लगा दूंगा। वज़ीर बहरी उमूर के जवाब पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। ऐवान को बताया गया कि हालिया बारिशों और बर्फबारी से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ, जायजा लेकर पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल रज़ाक खट्टी ने। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान मजहबी उमूर, रेलवे, बहरी उमूर समेत दीगर इदारों के मुताल्लिका अफसरान की गैर मौजूदगी पर स्पीकर असद कैसर ने बरहमी का इजहार किया। मोहलत के बावजूद न आने पर स्पीकर ने तंबीह जारी करते हुए कहा कि आइंदा किसी वजारत या डिवीजन के मुताल्लिका अफसरान ऐवान में गैर हाजिर होने पर न सिर्फ रूलिंग दूंगा और उसको सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ नत्थी भी करूंगा। हुकूमती अरकान असम्बली के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर समंदरी उमूर अली जैदी का तंजिया जवाब। टिकट का ताना भी दे दिया। बोले ना मेरा नंबर तब्दील हुआ ना ही घर, वही जगह है जहां ये टिकट लेने आते थे। जिस पर तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी नशस्तों से उठ खड़े हुए और एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले की नजाकत को समझते हुए अरकान को वॉकआउट से रोका और कहा कुछ मसाइल पार्लिमानी पार्टी समेत दीगर फोरम्स पर हल होने चाहिए। हुकूमती रुकन सरदार रियाज ने रेलवे में 1.5 लाख रुपए में मुलाजमतें फरोख्त किए जाने के इल्जाम पर स्पीकर ने तहकीकात की हिदायत कर दी। मुल्क में हालिया बारिशों पर आलिया कामरान, अब्दुल अकबर चित्राली समेत दीगर अरकान ने तवज्जो दिलाई तो वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा कि हालिया बारिशों और बर्फबारी से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेकर पैकेज का ऐलान करेंगे। जरताज गुल का कहना था कि NDMA समेत DDMA को भी मजीद फाल कर रहे हैं। NDMA के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की सिफारिश कर रहे हैं। दौरान इजलास यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद बिल 2019 भी मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।